Bismillahirrahmanirrahim. After that, we will discuss steel and its manufacturing. So, let us start. What is corrosion? Metals exist in nature as oxides, sulfides, chlorides. They are carbonates and silicates. In all these compounds, metal exist in cationic form. They have positive charge. And you all know that metals are electron donors. So in these compounds, metals are stable and they have low energy. They are in lower energy states. Metals are extracted from these compounds. So when metals are extracted, they becomes unstable and have higher energy states. As no metals have higher energy states, they are unstable. When these metals gets a chance to combine again with any anion like oxides, chlorides, sulfides, carbonates, they ever get a chance to donate electrons, they are again converted into their oxides, sulfides, chlorides, carbonates and silicates. So conversion of metal from their unstable higher energy states to their oxides, carbonates, sulfides that are their lower energy states to get stability is called corrosion. If you are noting here, metals when they are in their compound forms, chlorides, carbonates, silicates, they have low energy, and extracted metal, pure metal, have higher energy. So in always metallurgical reactions to extract a metal from its higher energy, from its lower energy state, stable form to unstable form, a huge amount of energy is required very high energy, because here product have higher energy than reactants. So to convert reactants into products, energy is required. So what is corrosion? Corrosion is deterioration or decay of a metal as a result of chemical reactions between it and surrounding environment. And why these chemical reactions are occurring? Because metal is obtaining its stable form, is going to lower energy state. Second point, corrosion is always a natural process that convert a refined metal into a more chemically stable form, such as oxides, hydroxides or sulfides. Third point is corrosion is a reverse process of extraction of metal. What is extraction? Extraction is obtaining metal from metallic compounds. It is extraction. And what is corrosion? Corrosion is conversion of metal into its compounds. So metallurgy or extraction and corrosions are exactly reverse processes. Corrosion is a broader term, but if we talk about just deterioration of iron, it is called rusting. What are the causes of corrosion? Any substance that have tendency to attract metal electron toward itself has ability to corrode the metal. Any substance that have tendency to attract metal electrons causes metal to lose electrons. It provide opportunity to metal to get oxidized
metals are willing to be oxidized to lose electron, to get their lower energy states, to get stability. So any substance that causes metal to lose electron can accelerate corrosion. Remember, in all corrosions, in all rustings, first reaction is always oxidation of metals. Metals loses electron in first reaction and corrosion is started. What are compounds that cause the oxidation of metal that can accept electron from metals? Gases of air, particularly oxygen, nitrogen, they have strong tendency to attract metal electrons, so they cause corrosion of metals. Water, hydroxide ions, OH ions and hydrogen ions of water also cause corrosion, as they can also compel the metal to lose electron to oxidize a metal. So any substance that can cause oxidation of metal, it can start corrosion of metal. So gases, water, gases of air, have more strong tendency to attract electrons. They can cause oxidation of metals and corrosion of metal. So also same case with water, that have hydrogen ions having strong tendency to attract electrons from metals, so causing oxidation of metals and cause of corrosion of metals. When a metal, third cause is when a metal having more reduction potential, having more tendency to gain electrons. Reduction mean gain of electron, potential mean tendency. Metal having more reduction potential comes to contact a metal with a more reactive metal, or metal having more oxidation potential, a galvanic cell will be established. And corrosion of metal with more oxidation potential increases. Here word is increase, is not started. Any metal that have tendency to gain electron from another metal, it will cause corrosion. Of metal that have more oxidation potential, a metal having more reduction potential can cause the corrosion of a metal that have more oxidation potential. कोई भी मेटल जो किसी दूसरे मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, तो वो उसकी ऑक्सीडेशन काज कर सकता है। तो अभी हमने पहले पढ़ा है कि कोई भी फैक्टर जो किसी मेटल को ऑक्सीडाइज कर दे, जो उसे इलेक्ट्रॉन लूज़ करा दे, क्योंकि ऑक्सीडेशन ही मेटल की जो कोरोजन है उसका सबसे पहला रिएक्शन है। तो कोई इवन के मेटल भी अगर किसी दूसरे मेटल के कांटेक्ट में आए और वो मेटल पहले वाली मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखता हो, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो, तो वो उस मेटल जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है उसकी ऑक्सीडेशन काज कर सकता है, तो वो उसके कोरोजन की वजह बनेगा। पर याद रहे कि ये कोरोजन को एक्सेलरेट कर देगा। ऐसे नहीं है कि अगर आप कोई मेटल किसी दूसरी मेटल के कांटेक्ट में कभी ना आए तो कोरोजन ना हो। कोरोजन मेटल्स के आपस में कांटेक्ट में आने के बगैर भी हो सकती है। कोरोजन का एक फैक्टर एयर है, एक फैक्टर वाटर है। तो एक मेटल दूसरी मेटल के कांटेक्ट में आने से
एक मेटल की करोजन इंक्रीज हो जाएगी। दिस फैक्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ corrosion explains the fact that how a metal can enhances the chances of corrosion of another metal. So question is that what happened when copper is brought in contact with aluminium? Here is a copper rod and aluminium rod is above and below. Copper rod is covered with aluminium. So what will happen with copper or aluminium when they are in contact with each other? The metal that have more oxidation potential, that is aluminium, will lose electron and will send electron to copper. तो एलुमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर से ज़्यादा है, तो एलुमिनियम को तलाश है किसी ऐसे सब्सटेंस की जो उसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन का लूज़ होना है, वो रिडक्शन के बगैर नहीं हो सकता। अगर ऑक्सीडेशन नहीं होना है तो रिडक्शन होगी तभी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। विदाउट रिडक्शन की ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। तो एलुमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी रखता है। एलुमिनियम के एटम्स यहाँ पे पता है इसके 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएं तो 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, जो कि नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको तलाश है कि कोई इससे जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। तो कॉपर की इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत इससे कम है। इसको उलट करें तो कॉपर की इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत इससे ज़्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज़्यादा है। तो जैसे ही एलुमिनियम कॉपर से कांटेक्ट में आएगा तो एक गैल्वेनिक सेल इस्टेब्लिश होगा, जिसमें एलुमिनियम एनोड होगा। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन लूज़ करने वाला एनोड होता है और कॉपर कैथोड होगा। तो एलुमिनियम ने ऑक्सीडेशन करके करोजन अपनी स्टार्ट कर देनी है। ऐसे हरगिज़ नहीं है कि अगर कॉपर एलुमिनियम के कांटेक्ट में ना आए तो एलुमिनियम की ऑक्सीडेशन नहीं होगी या एलुमिनियम को कभी भी करोजन नहीं होगा। ये सिर्फ कॉपर एलुमिनियम की करोजन को एक्सेलरेट कर देगा। और भी सब्सटेंसेस हैं जो एलुमिनियम की करोजन को एक्सेलरेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें से एक फैक्टर एलुमिनियम से ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल रखने वाला एलिमेंट है, जो कि यहाँ पर कॉपर है। ये भी इसके करोजन को, रेट ऑफ करोजन को इंक्रीज़ करेगा। सो इसके अलावा जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, अब एलुमिनियम और कॉपर का रॉड है तो इसको हमने कहीं खला में तो नहीं रखा हुआ, ये इसी धरती पे ज़मीन पे मौजूद है। तो इस पर पानी भी है और इसमें जो है बारिश हुई है या किसी नल का पानी भी यहाँ पे मौजूद है कॉपर और एलुमिनियम के रॉड्स पे, और कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर में मौजूद है। तो हम जानते हैं कि पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो अपने आयंस में कन्वर्ट होगा, लेकिन प्योर वाटर में आयंस की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। 10⁻⁻⁷ हाइड्रोजन आयंस होते हैं और OH आयंस होते हैं अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो। तो एक तो कुछ पानी के मॉलिक्यूल इस फॉर्म में है, जिसमें से ज़्यादातर वो वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में और थोड़े से अपने आयंस की फॉर्म में, और इनके दरमियान इक्विलिब्रियम है। कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्शन किया
जो कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है तो कार्बोनिक एसिड बना, और कार्बोनिक एसिड है तो वो डिसोसिएट होकर H आयन और HCO3 इन आयन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे मैंने लिखा है 3 तरह के आयन्स हैं। एक तो यहाँ पे पानी भी है, और H आयन्स हैं, OH आयन्स हैं, और ये 1 मिनट, यहाँ पर H2 नहीं, यहाँ पे HCO3 आएगा, तो HCO3 आयन्स भी हैं। तो ये आयन्स भी तमाम आयन्स जो यहाँ पे हैं, इनकी सलाहियत, पार्टिकुलरली जो हाइड्रोजन आयन की सलाहियत है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एलुमिनियम से ज़्यादा है। तो ये हाइड्रोजन आयन्स एलुमिनियम को क्रोड कर सकता है। अगर कुछ भी ना हो, सिर्फ हाइड्रोजन आयन्स भी एलुमिनियम को मिलें, तो एलुमिनियम इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके हाइड्रोजन को दे सकता है, तो तब भी क्रोजन होगी। तो कॉपर यहाँ पे एलुमिनियम की क्रोजन को थोड़ी देर बाद देखेंगे और एक्सेलरेट कर देगा। देखिए, अभी मैंने कहा था कि एलुमिनियम जो है वो कॉपर के कांटेक्ट में है, तो एलुमिनियम एनोड के तौर पर एक्ट करेगा, और एक एलुमिनियम का एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके वो जो OH आयन्स हैं वाटर के, उनके साथ मिलकर एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड, अगर पानी मौजूद है, वाटर है, तो उसमें वो डिज़ोल्व होता है। अब ये एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता जा रहा है ऊपर, और वो एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होता जा रहा है। तो इससे जो मेटल है वो ईटअप हो जाएगा, थिन होता जाएगा, इसी को कोरोजन कहते हैं। तो कैथोड पे क्या रिएक्शंस होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो कॉपर को भेजे थे एलुमिनियम ने, तो उस कॉपर पे वहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन्स हैं उन्होंने कॉपर के साथ कम्पीट किया है। हाइड्रोजन आयन्स की टेंडेंसी कॉपर मेटल एटम्स से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत हाइड्रोजन आयन की ज़्यादा है। तो ये हाइड्रोजन आयन्स कैथोड पे, जो कि कैथोड हमारा यहाँ पर कॉपर है, वहाँ पे मौजूद जो हाइड्रोजन आयन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने अभी तक पढ़ा है, इसमें से मैं आपसे पूछूं, वाई वाटर एक्सेलरेट कोरोजन, कि पानी एलुमिनियम से इलेक्ट्रॉन लूज़ कराने में तेज़ी करा सकता है, जल्दी करा सकता है? तो यस, करा सकता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन्स वाटर प्रोवाइड करते हैं, और हाइड्रोजन आयन्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। तो इस तरह से जो एलुमिनियम है उसके ऊपर अगर पानी के मॉलिक्यूल्स भी सिर्फ मौजूद हैं तो उसे जंग लग जाएगा। बाकी जो फैक्टर हैं वो तो एडिशनल हैं, वो तो कोरोजन के रेट को एक्सेलरेट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कॉपर डू? यहाँ पर कॉपर ने तो कुछ भी नहीं किया। डज कॉपर हैज़ एनी इम्पैक्ट ऑन कोरोजन ऑफ एलुमिनियम? सोचिए भाई, मैं बता देता हूँ। यस, कॉपर हैज़ impact. Copper will accelerate the corrosion of aluminium by attracting the electrons of aluminium toward itself. हाँ, वो और बात है कि जब कॉपर पे इलेक्ट्रॉन पहुँचे तो वहाँ पर हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट थे, तो उन्होंने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, उसे मौका नहीं मिला। यहाँ पे कैथोडिक रिएक्शन में देखिए अगर आप, तो कैथोड जो है वो हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन एक पुल जो है वो पुलिंग फोर्स ज़रूर थी कॉपर की एलुमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स पे, तो उसने उनका रिमूवल आसान किया है। तो कॉपर जो है वो एक्सेलरेट कर देगा एलुमिनियम के कोरोजन को। तो आंसर है यस। कैसे कोरोजन से बचा जा सकता है? स्टॉप मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन प्लीज़। मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से रोक दीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप ऊपर कोरोजन में से पहला रिएक्शन था, ये सबसे पहला रिएक्शन है यहाँ पे। अगर एलुमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज़ ना करे तो ये रिएक्शन नहीं होगा और एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा,
और वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा, मेटल थिन अप नहीं होगा। यही रिएक्शन रोक दो, इसको रोक दो भाई, ऐसा ना हो। अगर ये रिएक्शन ना हो तो करोजन नहीं होगा। इस रिएक्शन को कौन करा रहा है? ये तो ऑक्सीडेशन है, इसको रिडक्शन कोई ना कोई करा रहा है। इसको कह रहा है कि भाई हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन लूज़ कीजिए, हमें ज़रूरत है। तो उसी को हटा दें जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो बस ये सिंपल सा आंसर है प्रिवेंशन ऑफ करोजन का। आगे इसी आंसर को अप्लाई करें तो तमाम प्रिवेंशन ऑफ करोजन के मेथड्स आपको समझ आ जाएं। लेकिन मसला ये है कि हम यहाँ अप्लाई कर नहीं सकते। हमें सब कुछ बताया जाए, हमें अपने दिमाग बंद है हमारे। 4 लाइनें बुक की अगर हमें खुद से पढ़नी पड़ जाए तो नहीं समझ सकते। इंग्लिश का एक सेंटेंस पढ़ के उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके अपने दिमाग से उसकी तस्वीर नहीं बना सकते, उसको समझ नहीं सकते ये क्या लिखा हुआ है। इसलिए नेक्स्ट भी बता देते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करोजन क्या है। तो कैसे कैसे आप किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज़ कराने से रोक सकते हैं कि आप ऑयल से, पेंट से और वार्निश से उसकी सरफेस को कोट कर दीजिए। इनमें स्टेबलाइज़र्स होते हैं जो कि मेटल एटम्स को इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से रोकते हैं और वो साफ इनकार करते हैं कि हम नहीं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। अब अगर ऊपर से पानी या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन आ भी जाएं तो वो मेटल के ऊपर जो ऑयल स्टेबलाइज़र है, जो पेंट्स हैं, वार्निश हैं, उन पर आएंगे ऑयल। वो मेटल से डायरेक्ट कांटेक्ट में तो आ नहीं सकते, तो मेटल को करोड से बचाया जा सकता है। एलॉय फॉर्मेशन, एक मेटल और दूसरे मेटल को आपस में मिक्स कर दीजिए। एक मेटल को आप दूसरे मेटल से मिक्स करें तो इसमें से एक को तो जंग लगेगा लेकिन दूसरा बचा रहेगा। किसको जंग लगेगा? एक को जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा। एयर में ऑक्साइड्स हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो वो इन दोनों मेटल में से किसी एक को कहेगा भी आपको तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे। तो वो मेटल जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और दूसरा जो जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है वो तब तक बचा रहेगा। क्योंकि जब तक कोई सिंगल एटम भी उस मेटल का मौजूद है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो दूसरे मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो वही एक मेटल एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता रहेगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। हाँ, जब वो ख़त्म हो जाए मुकम्मल तौर पर तो फिर दूसरे मेटल की कोरोजन होगी। तो एलॉय फॉर्मेशन में एक्चुअली एक मेटल को जो है वो हम बचा लेते हैं। तो एज वेल एज अ मेटल विद हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल with lower oxidation potential is protected। यहाँ पे लिख लें as well as there is a metal with higher oxidation potential। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करने वाला अगर कोई मेटल मौजूद है तो दूसरा मेटल एटम जिसकी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी कम है तो वो प्रोटेक्टेड है। मेटल कोटिंग कीजिए। मेटल इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम सराउंडिंग। तो एक मेटल के ऊपर आपने दूसरे मेटल की कोटिंग कर दी है, तो बाहर के जो हाइड्रोजन और वाटर हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो यहाँ पर इस मेटल तक नहीं पहुँच सकते। वो इसकी सरफेस पे आने से यहाँ पे सरफेस पे नहीं आ सकते। तो देखिए बेटे, फिर ये जो नीचे वाला ये मेटल है, इनमें से कोई एक मेटल ऊपर वाले की कोरोजन होगी और नीचे वाले का फ़र्ज़ किया कि हम कहते हैं कि नीचे वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर वाले से ज़्यादा है। तो ये जो ऊपर वाले मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन मेटल्स जितने भी हैं वो अपने आयंस की फॉर्म में तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंटल फॉर्म में मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अगर ये फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे जो ये मेटल है, ये एक मेटल का एटम यहाँ पे ये 2-4 इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर लेते हैं और ऊपर वाले ब्लैक मेटल्स इनको कहते हैं कि आप इलेक्ट्रॉन लें,
तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी नहीं रखते। उनकी पुलिंग फोर्स से कुछ ना कुछ मेटल के एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेंगे, लेकिन वो स्टॉप हो जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन लूज़ करना की रिडक्शन ही नहीं हो रही। तो इसलिए कुछ मेटल जो है ना नीचे वाले, अगर उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा भी है ऊपर वाले से, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और फिर स्टॉप हो जाएंगे और वो उनको कोरोजन नहीं होगा। तो इस तरह से एक मेटल को आप दूसरे मेटल की कवरिंग से, एटमॉस्फेरिक जो नॉन मेटल्स हैं, जो गैसेस हैं, उनसे उसको सेफ रख के आप कोरोजन से बचा सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे अभी हमने कहा है ऊपर एक मेटल को दूसरे मेटल से कांटेक्ट में लाएं तो कोरोजन का रेट इंक्रीज़ हो जाता है। हाँ जी, इंक्रीज़ होता है, लेकिन साथ में हमने देखा था हाइड्रोजन आयंस भी थे का, और जो OH आयंस भी थे, HCO3 आयंस भी थे। अगर ये नहीं है तो एक मेटल दूसरे मेटल, अगर इनसे आप एक मेटल को दूसरे मेटल से बचा सकते हैं तो ऊपर वाली मेटल्स जो है वो इनके साथ रिएक्शन कर सके और नीचे वाले ना कर सकें, तो तब भी जो नीचे वाली मेटल है जिस पे आपने कोटिंग की हुई है उसे आपने कोरोजन से बचाया हुआ है। हाँ, उसके फ्यू एटम्स कोरोड होंगे, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो फिर स्टॉप हो जाएगा। A metal is protected from surrounding metal with higher reduction potential is attracting electron but not tendency to gain electron। ये ऊपर वाली मेटल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता, हाँ अट्रैक्ट कर सकता है। ड्यू टू अनस्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद मेटल एनाइन, so a few metal atom loses electron and oxidation stops as no reduction is taking place। यही बताया कि नीचे से कुछ मेटल के जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, लेकिन फिर स्टॉप हो जाएगा रिएक्शन के, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला ही नहीं है। आप किसको भेज रहे हैं इलेक्ट्रॉन? हाँ, ऊपर हाइड्रोजन आयंस ऊपर वाले मेटल के हैं, तो अगर ये ऊपर वाली मेटल जो है वो जिसकी कवरिंग की गई है वो हाइड्रोजन को कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन दे के कोरोड होता रहेगा, और जो जिस पे कवरिंग की गई है वो प्रोटेक्टेड है। दोबारा पढ़ लीजिए इसको ज़रा, क्योंकि आगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है इसी कॉन्सेप्ट से। मेटल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम सराउंडिंग मेटल विथ हायर रिडक्शन पोटेंशियल। Metal with higher reduction potential is attracting electron but not tendency to gain due to instability associated with metal anion। So a few metal atoms, कौन से मेटल एटम जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, उसके फ्यू loses electron and oxidation stops as no reduction is taking place। चलें बताइए, अगर ऊपर वाली बात समझ चुके हैं तो Why does damage tin plated iron, हमने आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग की हुई थी, अब वो जो टिन की कवरिंग है वो उतर गई है, वो कोरोजन से ईट अप हो गए टिन के मेटल्स जो है वो, लेकिन थोड़े से टिन के एटम्स अभी स्टिल जो है वो आयरन पे मौजूद हैं। तो अब एक आयरन है जिस पर कोटिंग नहीं है और एक आयरन है जिसकी कोटिंग उतर चुकी है। तो इसमें से जिसकी कोटिंग उतर चुकी है लेकिन स्टिल जो टिन के कुछ एटम्स हैं उस पे मौजूद हैं, वो अनकोटेड आयरन से जल्दी क्रोड हो जाएगा। वाई? सोचिए भाई ज़रा, क्योंकि एजुकेशन इज़ नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट इट इज़ ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। साथ में सोचते रहेंगे तो आप जो है वो एजुकेशन के प्रोसेस में हैं, सिर्फ बातें सुन के उनको याद करते जा रहे हैं, तो आप एजुकेशन के प्रोसेस से बाहर हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस एल्यूमिनियम करोड्स, एक एल्यूमिनियम को जंग कब कब लगता है? इन दो क्वेश्चंस का आंसर आ चुका है पहले। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर टिन के एटम्स मौजूद हैं। एक तो
कवरिंग उतर चुकी है, हाइड्रोजन आयंस भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने आ गए हैं, और एक टिन भी जो है वो आयरन के इलेक्ट्रॉन्स को एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हाइड्रोजन आयंस और टिन दोनों मिलकर आयरन्स के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो ये आयरन्स को ज़्यादा चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करे एज़ कम्पेयर टू दिस वन जिस पे सिर्फ हाइड्रोजन आयंस हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस एल्यूमिनियम करोड्स बाई एयर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो करोड करेगा, वाटर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो करोड करेगा, अपने किसी मोर रिडक्शन पोटेंशियल वाले मेटल के साथ कांटेक्ट में आएगा तो तब भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और करोड करेगा। तो आखिरी जो है वो गैल्वेनाइजिंग या जिंक कोटिंग है कि आप ना आयरन को जिंक क्लोराइड के बाद में जिंक को मोल्टन फॉर्म में लेकर, या जिंक क्लोराइड में जो जिंक है उसको आयरन को उसमें नहला के इसके ऊपर रोलर्स जो है ना वो पास करें, तो ये सारे जो आयरन के ऊपर जिंक है वो चिपक जाएगा, उसकी कोटेशन हो जाएगी। तो ऊपर जिंक नीचे आयरन है, तो इसे गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। जितने भी आयरन के हमारे घरों में बर्तन हैं ना, जैसे वो जिसमें दाने रखे हुए हैं आपके, या पुरानी बीबियाँ, अम्मा, वाह क्या दौर था वो भी, वो अपने साथ जहेज़ में बड़े सारे जो है वो संदूक लाती थी। मेरी अम्मी का भी है, वो भी जो है वो लोहे का बना होता था, तो उनमें जिंक की कोटिंग होती है। वाह, अच्छा जी, जिंक की कोटिंग हो गई, और ये जिंक बहुत एक्सपेंसिव मेटल है। आप ऐसा कीजिए कि दुनिया जहान में जो लोहा कबाड़ में बिकता है ना, पैसे हों तो वो बंदा इकट्ठा कर ले, और उसके ऊपर जो जिंक की कोटिंग है वो जिंक अलहदा करें, तो ये तकरीबन करोड़ों का बिज़नेस है। बहुत से लोग ये बिज़नेस करके जो है वो बहुत से पैसे कमा भी चुके हैं, क्योंकि जिंक जो है वो तकरीबन हर कबाड़ की दुकान पे जो लोहा पुराना लेते हैं ना पैसे थोड़े से दे के, वो उनमें जो लोहा पड़ा हुआ है ना उस पे जिंक है, अगर उसको आप अलहदा करके बेचना शुरू कर दें तो बहुत ही पैसे हैं, बहुत अच्छा बिज़नेस है। हम ना उधर GCU में थे, तो हमारे HOD साहब थे अपने डॉक्टर अहमद अदनान साहब। एक दिन हमारे जैसा एक लड़का आया, गाड़ी शाड़ी, तो आगे पीछे उसके गार्ड्स थे, तो वो उन्हें मिलने आया। तो बाद में उन्होंने हमें बताया कि ये मेरा स्टूडेंट था, ये यहाँ से चला गया था और इसने यही जिंक का बिज़नेस किया था, तो लोहा लेके उससे जिंक अलहदा करके बेचता था। तो अब देखिए उसके पास इतनी गाड़ियाँ हैं और गार्ड रखे हुए हैं उसने। व्हाट हैपन इफ़ जिंक इज़ डैमेज्ड, अगर ये जिंक यहाँ से उतर जाए, यहाँ से जिंक उतर जाए तो आयरन को क्या होगा? बताइए भाई, बता चुका हूँ पर अब मैं दोबारा नहीं बताऊँगा। In galvanizing, iron is coated with a metal having oxidation potential, having more oxidation potential than iron. Zinc का oxidation potential iron से ज़्यादा है। अब अगर ये उतर भी जाए ना, तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि किसी मेटल के ऊपर उस मेटल की कवरिंग की जाती थी कि
जिसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो नीचे वाले से कम है। अब अगर आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाए तो अगर वो जो कवरिंग है वो उतर भी जाए तो तब भी जो है वो आयरन को जंग नहीं लगेगा, आयरन करोड नहीं होगा, तब भी जिंक ही होता रहेगा, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयरन से ज़्यादा है। आने वाले हाइड्रोजन आइंस जो यहाँ पर होंगे, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन आइंस आ भी जाएं और ये यहाँ से टूट चुका है तो ये हाइड्रोजन आइंस नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन लेने आयरन से, तो जिंक पहले उन्हें इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो आयरन जो जिंक है वो ख़ुद को सेक्रीफाइस कर रहा है आयरन के लिए, तो जिंक जब तक मौजूद होगी तो आयरन को जंग नहीं लगेगा। और ये कितना अच्छा किसी ने सोचा था आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए। तो गैल्वेनाइजिंग आयरन इज़ coated with a metal having more oxidation potential than iron. तो जिंक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयरन से ज़्यादा है। इफ़ जिंक डैमेज्ड तो क्या रिएक्शन होगा कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक ऊपर है और आयरन में से नीचे, मोस्टली आयरन जो है वो ज़्यादातर इस फॉर्म में थोड़े से आयरन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुके हैं आयरन को देने, उसको जिंक को देने के लिए। लेकिन जिंक जो है वो एनाइन से एटॉमिक फॉर्म से अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो वो एनाइनिक फॉर्म में चला जाता है। तो ये तो जिंक की बहुत अनस्टेबलाइज्ड फॉर्म है, तो ये रिएक्शन नहीं हो रहा था। तो थोड़े से आयरन्स ने जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके वो इलेक्ट्रॉन उनके पड़े हुए हैं और वो बाकी आयरन सारे सेफ थे। अब जो जिंक ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है ना, जो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, फिर वो आयरन के पास, फ्यू आयरन आइंस जो मौजूद हैं वहाँ पे उनके पास जाएंगे और आयरन दोबारा, देखें जिंक को कोरोजन लगता जा रहा है लेकिन आयरन सेव है, बल्कि थोड़े से एटम जो कैटाइनिक फॉर्म में थे वो भी दोबारा एटॉमिक फॉर्म में आ गए। तो जिंक सेक्रीफाइज इटसेल्फ टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम कोरोजन, दिस इज़ कॉल्ड सैक्रिफिशियल कोरोजन। तो सैक्रिफिशियल कोरोजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कोरोजन इन विच अ मोर एक्टिव मेटल is intentionally used to corrode, कि उसको जंग लगे, मोर एक्टिव को, ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले को जंग लगे, इन प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। ओके जी। तो इसके बाद जो है वो स्टील है, 3 तरह के स्टील हैं। मिल्ड स्टील जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे कम है, मीडियम स्टील कार्बन कंटेंट ज़्यादा, और हाई कार्बन स्टील जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा है। जितना कार्बन ज़्यादा हो, कार्बन इंटरस्टीसिस में होता है, जो आयरन के एटम है स्टील में, उनके दरमियान में आयरन जो है वो कौन है, यहाँ पे कार्बन मौजूद होता है। तो जितनी कार्बन ज़्यादा होगी ना उतनी हार्डनेस ज़्यादा होगी, और जितनी हार्डनेस ज़्यादा होगी उतनी मेलिबिलिटी और डक्टाइलिटी कम होगी, और उतना जो है वो मेटल को फोर्ज करना, उतना उसको तार और शीट्स में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा। तो सबसे ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल जो है वो मिल्ड स्टील है जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे कम है, और सबसे कम मेलिएबल और डक्टाइल वो स्टील है जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा है। सबसे लेस मेलिएबल और डक्टाइल है और सबसे ज़्यादा हार्ड है, इसको फोर्ज नहीं किया जा सकता, हैमर्ड करके किसी दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। तो मिल्ड स्टील सॉफ्ट है, मेलिएबल डक्टाइल है। मिल्ड स्टील से मीडियम कार्बन स्टील ज़्यादा हार्ड है, कार्बन कंटेंट ज़्यादा हो गया, मेलिएबल और डक्टाइल ये भी है, और ये भी हार्ड है, और इतना हार्ड है कि इसको फोर्ज्ड भी नहीं किया जा सकता, सबसे ज़्यादा हार्ड है, इसको मेलिएबल और डक्टाइल नहीं है ये, इसको कूटेंगे तो ये टूट जाएगा। ये जो मिल्ड स्टील है, मिल्ड कार्बन स्टील ट्यूब्स में, नट्स में, बोल्ट्स में और बार्स में यूज़ होता है, और जो मीडियम है वो रेल्स में, एक्सल्स में, कास्टिंग्स में, कास्टिंग कहते हैं उनको, अपने
ईंटें बनाने वालों के पास ईंट का जो है ना वो एक स्टील का बना हुआ क्या कहते हैं उसको, और तो कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा, वो बर्तन ही कह दें, वो इस तरह का होता है कि उसमें ना वो मिट्टी डालते हैं और फिर ईंट की शक्ल में उसको बना के ना फिर इसे बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से ईंट वो कास्टिंग है, नक्शा किसी चीज़ का बनाना हो तो। अच्छा जी, और जो ये हाई कार्बन स्टील हैं ये हैमर्स में, टैप्स में, हार्ड स्टील टूल्स में यूज़ होते हैं। बेसमर्स प्रोसेस है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। अगर आपके पास कास्ट आयरन जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, साथ में सिलिकॉन, मैंगनीज और इम्प्योरिटीज़ हैं, ये इस कास्ट आयरन को आपने स्टील में कन्वर्ट करना है। तो बेसमर्स प्रोसेस है आज से जो 1970 से पहले बेसमर्स प्रोसेस ही यूज़ होता था। तो इसमें जो हम यूज़ करते हैं अपना अपरेटस, वो है बेसमर्स कन्वर्टर। पेयर शेप्ड होता है और स्टील से ही बना होता है। तो कास्ट आयरन को स्टील में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। याद रहे कि हम इन इम्प्योरिटीज़ को कम करने जा रहे हैं। तो बेसमर्स कन्वर्टर पेयर शेप्ड स्टील से बना होता है, यूज़ होता है। देख लेते हैं ज़रा उसको, शक्ल उसकी। ये आपके पास जो है ना वो बेसमर्स कन्वर्टर है। इसमें देखिए रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हैं, ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स से बनी हुई है। और जो बाहर इसके हैं आपके पास ये स्टील है, यहाँ पे स्टील से बना हुआ है, लेकिन लाइनिंग किसकी है, ब्रिक्स की, जो कि रिफ्रैक्टरी हैं, जो हीट को रिफ्रैक्ट करें। और ये टर्नियन है इसका, जिस पे ये जो है वो घूम सकता है, टर्न आउट हो सकता है। यहाँ से हम बाहर जो अपना फर्नेस है, एक ब्लास्ट फर्नेस, यहाँ पे अपना जो हमारा फ्यूल है उसको जला के एयर को हीट करके यहाँ से पास करते हैं, हीटेड एयर पास करते हैं यहाँ से। तो हीटेड एयर जो है वो यहाँ से पास होके चार्ज पे आएगा। चार्ज क्या है भला, हमारा कास्ट आयरन है और या फिर स्टील के स्क्रैप्स भी हो सकते हैं। तो कंटिन्यूसली एयर पास करेंगे तो जो आयरन है वो मेल्ट होगा और मेल्ट होके उसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो कार्बन है वो बाहर आएगी, मैंगनीज़ बाहर आएगा, सिलिकॉन, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसमें बाहर आएंगी। तो एयर में ऑक्सीजन भी है, तो ये इम्प्योरिटीज़ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके या तो गैसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं या फिर स्लैग में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो देखिए ज़रा, ये हम पढ़ लेते हैं क्योंकि आपने पेपर में लिखना भी है इसको। तो मैं क्या कह रहा था कि बेसमर्स कन्वर्टर है, पेयर शेप्ड है, स्टील से बना हुआ है। बॉटम कंटेन्स होल्स फॉर पैसेज ऑफ हॉट एयर टू चार्ज। वो मटेरियल जिसमें से हम जो एंटर करते हैं, जिसमें से इम्प्योरिटी सेपरेट करनी है, वो चार्ज है। हेल्ड ऑन सेंट्रल एक्सिस टू बी टिल्ट फॉर फीडिंग एंड पोरिंग मटेरियल। तो एक्सिस है इसका, उस पर टिल्ट भी हो सकता है, इसको मोड़ा भी जा सकता है एक्सिस के राइट और लेफ़्ट, ताकि इसमें मटेरियल एंटर करना या बाहर निकालना आसान हो। मोल्टन कास्ट आयरन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस इज फेड टू कन्वर्टर। पहले भी आपने आयरन को मेल्ट किया हुआ है, पहले से ब्लास्ट फर्नेस से मेल्ट करके आयरन ले आए हैं आप। आयरन को
मेल्ट कर लिया ब्लास्ट फर्नेस से, अब आप कन्वर्टर में एंटर कर रहे हैं और कंटिन्यूसली कन्वर्टर की बेस से हॉट एयर पास कर रहे हैं। तो आयरन मेल्ट होगा, तो अभी कहा था कि इम्प्योरिटीज़ बाहर आएंगी, कार्बन आने वाले एयर के ऑक्सीजन से, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड। अब ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। इसके अलावा जो है वो मैंगनीज ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड मैंगनीज सिलिकेट बनाते हैं, जो कि स्लैग है। तो कुछ एयर जो है ना वो आयरन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। यहाँ पे आयरन के जो है वो Fe2O3 के मॉलिक्यूल्स को बन जाते हैं। अच्छा जी, तो इस आयरन को, ये तो हमारे लिए फिर इम्प्योरिटी होगी कि हम तो आयरन को प्योर करना चाह रहे थे, वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में आ गया, तो वो परेशान ना हो। जो कार्बन है ना वो Fe2O3 को दोबारा रिड्यूस करके आयरन में कन्वर्ट कर देता है। सम एयर इज़ पार्शली ऑक्सीडाइज्ड बट अगेन रिड्यूस टू आयरन बाय कार्बन। अच्छा जी, सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव होने के बाद ये स्लैग जो है ना जैसे जैसे बनती है तो ऊपर आ जाती है, ऊपर स्लैग गैसेस तो वैसे ही उड़ जाती हैं, स्लैग को हम फिर स्किम्ड आउट कर लेते हैं। स्किम्ड आउट, हाँ। एडिशन ऑफ फेरोमैंगनीज, अब जो स्टील है उसमें आप आयरन, मैंगनीज और कार्बन अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी जितनी ऐड करते हैं, जितनी आप उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो रिमूवल ऑफ एयर बबल्स, तो नाइट्रोजन है एयर में, ये बबल्स की फॉर्म में जो है वो मोल्टन एयर में छुप जाती है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम एलुमिनियम ऐड करते हैं, जो कि एलुमिनियम इसको एलुमिनियम नाइट्राइड में कन्वर्ट कर देता है। चलें भाई, इसमें से जो हमने पढ़ा है ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो इसको ज़रा देखिए और फिर जो बात समझ में आए वो फिर डिस्कशन में पूछिए। अपना ख्याल रखिए आप। अल्लाह हाफिज़।